اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بے حد اس کا شکر، اس کا احسان، شکر ہے کس کا؟ مالک الملک، دو جہاں کا بادشاہ، شہنشاہ، پروردگار عالم اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا فرمان ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی کراہیت نہیں ہے، اور دین کے اندر آسان ہے، اور دین جیسا آسان ہے کسی اور میں آسانی نہیں ہے، کسی اور میں آسانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو خاص مومن کے لیے پیدا کیا، دین کو اللہ تعالیٰ نے خاص مومن کے لیے پیدا کیا۔ دیکھو، سوچو اور سمجھے، حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنانے سے پہلے دنیا کو پیدا کیا، دنیا کو پیدا کیا، پانی پیدا کیا، ہوا پیدا کیا، آگ پیدا کیا، جتنے چیزوں کی ضرورت ہے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا کیا، انسان کے لیے پیدا کیا۔ انسان کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ اللہ رب العزت کے واسطے پیدا کیا۔ کیوں؟ اس اکیلے کو مانو، اکیلے کی عبادت کرو، اکیلے کی پرستش کرو، اکیلے سے ہونے کا یقین رکھو، اکیلا ہی ساری دنیا کو سنبھالنے والا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے، ایک کے علاوہ دو کوئی نہیں ہے، ایک کے علاوہ دو کوئی نہیں ہے، وہ تنہا اکیلا ہے، واحد ہے، اور وہ ہر ایک کی بگڑی بنانے والا ہے، زندگی بنانے والا ہے، اچھا اور برا تو کوشش کرنے والا ہے۔ یہ ایمان والوں کا یقین، ایمان والوں کا کامل یقین، ایمان والوں کا بھروسہ، ایمان والوں کو بھروسہ۔ موٹے موٹے مثال میں سمجھاؤ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بنانے کے بعد اگر ہم کسی اور کو معبود مانے، اگر وہ معبود کا جیسا دکھتا ہے یا نہیں دکھتا ہے وہ سمجھتا ہے، اگر اس کو معبود کہنے کا قابل ہے یا نہیں ہے وہ دیکھ سکتا ہے، اگر وہ معبود جیسا دکھتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی ہلنے کی طاقت ہے یا نہیں ہے دیکھو، اگر اس کے اندر کچھ بنانے کی طاقت ہے یا نہیں ہے وہ دیکھو، اس کے اندر زندہ کرنے کی طاقت ہے یا نہیں دیکھو، اس کے اندر موت دینے کی طاقت ہے یا نہیں ہے وہ دیکھو۔ سمجھو کہ اگر کسی کے اندر بھی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وہ ہرگز معبود نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، پیغمبر بنا کر بھیجا، اس واسطے بھیجا کہ راستے پہ لکھانے کے لیے، ہدایت کے راستے پہ لکھانے کے لیے۔ بچے تھے، بڑے ہو گئے، سمجھ آ گئی تھی۔ ابراہیم کے باپ آزر تھے، ابراہیم کے باپ آزر تھے، اور بت تراش بھی تھے، بت فروش بھی تھے، بت تراش بھی تھے، بت فروش بھی تھے۔ ان کی زندگی پوری اگر بت
फरोश बेचने की जिंदगी है, अगर वो बेचे तो उनकी जिंदगी गुजरती थी, वरना नहीं गुजरती थी। वो खुद जितने भी बेचते हैं उसके अंदर जो फायदा आता है बाल बच्चे सब खाते रहते थे। ऐसे खानदान में अल्लाह तबारक व तआला ने एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। पैदा करने के बाद कुछ अकल आने तक उनके खानदान में थे, उसी के न थे। जब आहिस्ता आहिस्ता सारे ईदों की तहकीक करने लगे, सारे ईदों की पहचान करने लगे, आज हमारा खानदान किसको मानता है? बेजान चीज को मानता है और बेअकल काम करता है। बेअकल काम करता है, अकल रहने के बावजूद वो अपने आप को अकल घुमा के काम करता है। इसको राह रास्ते पे दिखाने के लिए क्या करूं? आकर हमको कोई बनाने वाला है या नहीं है, हमारे को कोई पैदा करने वाला है या नहीं है। हमको कोई पैदा करने वाला है तो मैं उसकी तलाश में निकलता हूँ, उसकी तलाश में निकलता हूँ। गए जाते 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 समंदर के किराने गए, समंदर के किराने गए, रात हो गई, दिन होके सुबह हो जा रही और सूरज के किरणें निकलने लगे। समझ नहीं कि ये आने वाला यही खुदा हो सकता है। हाँ? आने वाला यही खुदा हो सकता है। धीरे धीरे जब निकलता शुरू हो गया, निकलते निकलते धूप बढ़ गई और धूप बढ़ते 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 आगे चल के कम होना शुरू हो गई। जब कम होके फिर डूबना शुरू हो गया, रात का अंधेरा छाने हो गया, सितारे निकले, चांद निकले। जब समझ में आई कि ये तब्दील हैयत तब्दील होने वाली कोई चीज मेरा खुदा नहीं बन सकता, मेरा खुदा नहीं बन सकता, मैं इसको कैसा खुदा मानूं? तो सोचे नहीं। फिर आखिर में सोचे कि मेरा बनना, मेरा बनाना, मेरा बनना, मेरा बनाना कोई ना कोई है, कोई ना कोई है। सच्ची पहचान के लिए निकले और निकलने के बाद जब अल्लाह ताला ने समझ डाला कि मैं अकेला वाहिद खुदा हूँ, जिसको दुनिया ये कायनात को मैं संभालता हूँ और दुनिया की रोजी रोटी मेरे जिम्मे है और मैं उनको खिलाता हूँ और पिलाता हूँ। ये समझ में आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता निकल पड़े। देखे तो हिदायत के रास्ते पे जाने के लिए गए। आहिस्ता लोगों से पूछते गए कि ये जो माबूद है, माबूद तो ये है कि सूरत इंसान की, शक्ल इंसान की और सारी चीजें इंसान की, इसके अंदर न हलने की ताकत है न छूने की ताकत है। ये कैसा माबूद हो सकता है? उस साल में एक दफा ईद मनाते, ईद बनाते वक्त पका के अच्छे किस्में से पका के लेके जाते, ले जाके सामने रखते, रखने के बाद दूसरे दिन आके उनका झूठा, माबूदों का झूठा वो खाए हैं सबके, वो हर एक अपने पेशाब की जाते तबर्रुक के तहत वो लोग खाना शुरू करते थे। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अक्ल सलीम अता किया तो कभी नहीं खाते थे, कभी नहीं खाते थे। एक दिन छुप के जाके देखे तो सुअर, कुत्ता, बिल्ली सब खाते हुए नजर आए, सब खाते हुए नजर आए। जब वो खाते हुए नजर आए तो उनका पीछा छुटा हुआ धुआं पड़ा, यहाँ पर आओ उसको तबर्रुक समझ के निकाले। अल्लाह ताला इन लोगों के अकल में कर डाला होगा, बेसमझ इंसान है, इनको कैसा करना, कैसी समझ अदा करना। वो दोनों की एक खिलान बना दिया। खिलान बनाने के बाद सारे बुतों को, किसी का हाथ, किसी का टांग, किसी का नाक, किसी का कुछ तोड़ दिया। असल जो शहींशाह बुत है उसके पर कुराड़ी रख दिया, कुराड़ी रख के जाके सो गए। और हमेशा यही दावत देते कि ये बुत परस्ती, ये खुदाएं कभी नहीं हो सकते थे, हमेशा उनके खिलाफ जाते थे। लोगों को दावत इल्लाह की तरफ रुजू करने की कोशिश करते थे। लोग सारे के सारे टूट पड़े, सारे के सारे दुश्मन हो गए। दुश्मन हो कोई बात नहीं, दुश्मन हो
कोई बात नहीं, मगर दावत तो देते गई, दावत देते ही गई। आखिर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तकलीफ देते गए, यहाँ तक कि आग में डालने का बहाना भी बना दिया, आग में डाल दिए। मगर आग मदद के लिए आ गई तो आग से मदद नहीं लिए, बारिश मदद के लिए आ गई, बारिश से मदद नहीं लिए। ये कहते थे कि आग तू किसी और की मोहताज है, तू और किसी की मोहताज है, मैं तेरा मोहताज कैसे बन जाऊं, मैं तेरा मोहताज कैसे बन जाऊं। बारिश तू किसी और की मोहताज है, मैं तेरा मोहताज कैसे बन जाऊं, मैं किसी और का मोहताज नहीं बनता हूँ। और चिड़िया की कहे अपने चोचों में लिखा कि यह आग को ठंडी करने की ताकत हमें दी है, हम कहाँ जलाते, तो हम किसी के मोहताज नहीं बनते, एक अल्लाह के मोहताज बनते, एक अल्लाह के मोहताज बनते। भारी विश्व का बादशाह डराया, धमकाया, जान लेने की फिलान करा, आग में डालने की भी फिलान करा। आग डालने तो डाले, लकड़ियों को जमाया, आग लगाया। कहते हैं कि उसकी आग की गर्मी नजर इंतहाई नजर तक पहुंच रही थी, आग की गर्मी इंतहाई नजर तक पहुंच रही थी, ऐसी गर्मी थी। कहते हैं कि अगर परिंदा दरिंदा आग के करीब गिर जाता है तो जल के राख बन के गिर जाता है। ऐसी गर्मी की हालत में उनको अल्लाह ताला ने इम्तिहान ले लिया। तो लोग कहते हैं तो अब तो भी तेरा दीन छोड़ दे, अब तुम तेरे खुदा को छोड़ दे, आजा हमारे तरफ, बादशाही तेरी कुर्सी देने तैयार है, बेटी देने तैयार है, सारे कुछ देने के तैयार है। ऐसी की तैसी, ना दुनिया चाहिए ना बादशाही चाहिए, दुनिया की दौलत चाहिए, मेरे अल्लाह मुझे चाहिए, मेरे अल्लाह मुझे चाहिए। ये यकीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आप को बना दिया, ये यकीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आप को बना दिया और लेके गए इनको डालने के लिए। फौज आई, उठा के लेके गई, वह आग के करीब नहीं जा सकता, दूर से फेंकने का एक आला बना दिया। आला बना देने के बाद उसमें बिठाते वक्त भी कहते कि ए मेरे लाल, ए मेरे बेटे, ए मेरे बेटे, अभी तो तू दीन को छोड़ दे, अभी तो दीन को छोड़ दे, अब तेरा पूरा इंतजाम होगा। नहीं नहीं, मेरा दीन मेरा जिंदा रखने वाला, मेरे अल्लाह मुझे जिंदा रखने वाला है, मैं इससे क्या डरता हूँ, मेरे माबूद हकीकी से डरता हूँ, ये माबूद नकली मुझे क्या कर सकता है। ये कौन का है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आखिरकार यहाँ तक के गोपिन बना के आग के अंदर फेंका गया, आग के अंदर फेंका गया। जब फेंकने के बाद ऐसे गए, हंसते कूदते बोलते जीना जाए, अल्लाह का हुक्म है कि आग तू मेरे इब्राहिम पर जन्नत बन जा, बाग बन जा, जा बाग बन जा। ऐसे ठंडी हवाओं के साथ तन्हाई बीच में चले गए। अल्लाह ताला ने बचाना हो तो कैसे बचाते हैं? देखिए, आग उनको छीन नहीं सकती, आग उनको छीन नहीं सकती। ऐसे अंबिया अलैहिस्सलाम के कई वाक़े है। वहदानियत को यकीन करने के लिए यूनुस अलैहिस्सलाम जब लोगों से डर घबरा गए, बद्दुआ करे, हर पैगंबर का ये कायदा कानून था, ये जब बद्दुआ करे तो उसका जवाब आने तक इंतजार करना था। यूनुस अलैहिस्सलाम जवाब आने तक न ठहरे, जल्दबाज में चले गए, समंदर के अंदर कूद पड़े। समंदर के अंदर जाते मछली इंतजार कर रही थी, मछली अपने पेट के अंदर छुपा ली। देखिए, मछली अपने पेट के अंदर छुपा ली, छुपा के मछली गिरा नहीं सकी, आकर मछली किनारे पे फेंकी। अल्लाह ताला ने बचाना है तो मछली के पेट में रख के भी बचा सकते हैं, आग के दहन में भी रख के बचा सकते हैं। मगर याद रखो, खुदावंद करीम एक है, खुदावंद करीम एक है, उसकी इबादत करो, उसकी पूजा करो, उसकी पाठ करो, उसका जिक्र करो, उसकी याद करो। भाई देखो, ये दुनिया, हर इंसान, सारी कायनात खुद गरज, सारी कायनात खुद गरज है। बाप भी खुद गरज,
माँ भी खुद गरज, बेटा भी खुद गरज, बेटी भी खुद गरज, बहू भी खुद गरज, सारे घर के हैं, कोई किसी का काम का नहीं है, कोई किसी का काम का नहीं है। काम का एक ही वो है, वो वहदानियत रब्बुल आलमीन, वो वहदानियत एक रब करीम है। वो रब करीम ही इज्जत देता, जिल्लत देता, इज्जत देता, जिल्लत देता, जिंदगी को बढ़ाता, जिंदगी को घटाता, जिंदगी को घटाता, बीमारी को लाता, बीमारी को शिफा करता। अल्लाह ताला ने इस जमीन के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को पैदा किया जिनकी दुआओं की बरकत से हम चलते हैं, जिनके दुआओं के बरकत से हम चलते हैं। ये बायजीद बोस्तानी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात कई आते हैं। बायजीद बोस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ये ईरान के थे। ये ऐसे ऐसे आपके याद आते थे, याद रखो, ऐसे अगर उनके वाक़यात सुनो तो हम हैरत होते। वलियों के सरदार, एक वली, ऐसे वली, दूसरे वलियों ने इनको वली कहा गया, कामिल वली कहा। बायजीद बोस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे वाक़े, वो रात दिन इबादत में रहते थे, अल्लाह की फिक्र में करते थे। सुने, बायजीद बोस्तानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ की बहुत खिदमत किया था, इतने खिदमत करते थे, माँ के मुंह में से अगर कोई अल्फाज निकलती है तो निकलने से पहले उसका पूरी कामिल करते पूरी। और माँ की खिदमत क्या करते थे कि कहते थे अपनी चैलेंज को खत्म कर सकते थे, मगर माँ की इबादत को खत्म नहीं कर, माँ की खिदमत को खत्म नहीं कर सकते। एक रात का किस्सा है, माँ पूरिया थी, ड्राइव थी, नींद लग गई, सो गई थी। बोस्तानी रहमतुल्लाह अलैह बाजुक थे, आवाज दी कि बेटा पानी की जरूरत है, बेटा पानी की जरूरत है। बेटा ने कुआं लेकर, पूजा लेकर आया पानी का, और चुराई लेकर आया पानी का, हंडा लेकर आया पानी का, मटका लेकर खड़े, आगे देखते हैं तो मीठी नींद में सो रही मेरी माँ, नींद में सो रही, इतनी मीठी नींद है, लेके खड़े है। ए अल्लाह, मेरी माँ कितने प्यासी होगी, क्या मुझे लाने में 2 सेकंड हो गया, मुझे इतना वक्त क्यों दिया तू? अगर मुझे सेकंड का वक्त देता तो मेरी माँ का प्यास मैं बुझा सकता था, मेरे खुदे में नहीं है, मैं इसको तेरे पास क्या जवाब दे सकता हूँ? मेरी माँ को है, अगर मैं उठाऊं तो मेरी माँ की मीठी नींद बर्बाद हो जाती, मैं तेरे पास इसका जवाब क्या दे सकता? नहीं, तेरा इसका जवाब, तुम पास क्या जवाब दे सकता हूँ? मैं कैसा रात दिन मलाल में रह गए, रात पूरी गुजर गई, अचानक माँ की आंख खुलते ही बेटे के ऊपर पड़, बेटे पे पड़ गई, पड़ते ही बेटे को दे, ए बेटे कब से खड़ा हुआ? मेरी माँ, तू जब से आवाज है, मैं जब से तेरे पानी पिलाने के लिए खड़ा हुआ, सारी नींद। मेरी माँ, मेरा तेरा हुक्म मेरे अंदर प्यारा है, तेरा हुक्म मेरे अंदर प्यारा है, मेरी नींद प्यारी नहीं। मेरी माँ, कौन बेटा कहता है आज बाप को कहता है? कोई माँ की खिदमत करता है? कोई किसी की खिदमत करता है? मेरी माँ को कैसे एक बाप की कोई बात मानता है? माँ का कोई हुक्म मानता है? माँ गाली देता है। देखो मेरे भाई बहनों, याद रखो, हम अपनी औलाद को कैसा पालते हैं, हम औलाद को कैसा पालते हैं। आज हमारे पे हाथ उठाने वाला बन गया, आज हमारे पर तलवार चलाने वाला बन गया, आज हमारे को गाली देने वाला बन गया, आज हमारे अंदर खींच पैसा लेने वाला बन गया, आज हमारी बर्बादी करने वाला बना। क्यों बना? आज क्यों बना? हमारी तरबियत ने वैसी कर दी। हमारी तरबियत क्या थी? हमारी तरबियत दीन की तरफ तवज्जो दिलाना, हमारी तरबियत दीन की तरफ दिखाना, हमारी तरबियत कुरान की तरफ दिखाना, हमारी तरबियत अच्छे रास्ते में सिखाना, हमारा आदत औलिया अल्लाह के दोस्तों, औलिया अल्लाह के मजलिसों में बिठाना, बुजुर्गान दीन के मजलिसों में बिठाना, उनकी सोबतों में बिठाना। जब माँ ने दुआ दी कि मेरे बेटी का अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, वो बख्शे बख्शाए बायजीद बोस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने बख्शे बख्शाए, ये दिल में माँ की दुआ किए देखे। एक दिन यही बायजीद बोस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर रात को उठी, माँ ने, बेटा एक दीवार बनकर देना,
नींद लग गई। 2-3 कबाड़ थे, यानी दरवाजे जो ना बेटा, तो उसको फिर आंख लग गई। आंख लग के फिर वो लेके मेरी माँ ने ये दरवाजा बंद करो, बोली ये दरवाजा बंद करी। मैं उसकी तामील, हुक्म की तामील नहीं करी तो मैं अल्लाह की यहाँ पकड़ हो जाएगी, अल्लाह के यहाँ पकड़ हो जाएगी। मैं कौन सा दरवाजा बंद? उठे बैठे, बोले कि बेटा तू करते था, जब आवाज दिया माँ मैं दरवाजा बंद नहीं किया, मैं तेरे आवाज के खिलाफ आज जाऊंगा, अल्लाह के यहाँ आग के उसमें जल जाऊंगा मैं। ऐसे गुस्तावी रहमतुल्लाह। आज औलिया अल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के वाकया सुनो, बाबा शरफुद्दीन के वाकया सुनो, क्या कैसे कैसे हैं। आज हमारे इस दुनिया में कौन औलिया है, कौन वली है, कौन अल्लाह का बंदा है, कौन अल्लाह का दोस्त है? सारे के सारे झूठ, फिरेब, झूठ, अपनी तारीफ, अपना ही बड़ाई, अपना ही किबरियाई, हर चीज अपना करने वाला कभी खुदा की कसम वली नहीं बन सकता, कभी खुदा की कसम वली नहीं बन सकता। वली बनना है अपने आप को आपने मिलाएगा तब बनी हो जाएगा। एक बुजुर्ग रात की इबादत करते थे, रात भर इबादत करते थे, एक दिन चैन नहीं आ रही इबादत के अंदर, रात की इबादत के अंदर चैन नहीं आ रही, बेचैनी हो रही। घर वाले से पूछताछ करे क्या चीज है, घर के अंदर से आवाज आ रहा कल के लिए कुछ गोश्त रखा हुआ है, कल के लिए कुछ गोश्त रखा हुआ है। इसलिए क्या तुम लोगों को कल का मेरा मालिक कल का खाना नहीं देगा, मेरा मालिक कल का रिस्क नहीं देगा, मेरा मालिक कल का वीजा नहीं देगा? तुमसे ये भरोसे पे अगर तुम यही चीन पे रखे तो आज मेरी इबादत कैसी हो जाती। पहले उसे निकालो, तकसीम कर दिए, जब तकसीम करने तक चैन नहीं होगी, जब तकसीम हो गई जिस्म के अंदर सुकूनियत आ गई, अल्लाह की इबादत में हो गई। आज हम क्या करते हैं, आज धोखा लेते हैं, धोखा देते हैं, पैसा लूटते हैं, पैसा लेते हैं, झूठ बोलते हैं, ना दीन मालूम ना दुनिया मालूम, दीन ना मालूम, सच्चा रास्ता मालूम, कुछ नहीं मालूम। अपने आप को वली बनना बहुत बड़ी कमबख्ती की चीज। समझ बात, ये अल्लाह वाले ने आज क्या क्या काम करके बैठे। भाई दोस्तों, मैं कहता हूँ एक है, हर मोमिन वली बनना, हर मुसलमान वली बनना, हर कामिल वली बंदा, हर लोग बनना। मैं कहता हूँ कि मुसलमान नहीं, इसके अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन के लिए रहमत बन के नहीं आए, मोमिन के लिए रहमत बन के नहीं आए, खाली मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए रहमत बन के नहीं आए, मगर सारे आलम के लिए महबूब। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, दलित है, पलित है, सारे के लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाओ। हर एक के साथ प्यार मोहब्बत के साथ, हर एक के साथ दीन के साथ पेश आए। बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पास ईसाई बादशाह ने बुलाया, बुला के ऐसे सवाल किया, 62 सवाल किया, कितने 62 सवाल किया, 62 सवाल किया। और ये बोले कि रात में ख्वाब में ये कहते हैं कि बुस्तानी ईसाई का लिबास डाल, अपने कमर को पट्टा बांधे, बांध के ईसाई के मजलिस में जाके बैठ। नहीं बैठे, दूसरे दिन आ गया, बैठे, बैठने के बाद फिर गए, तो जैसा हुक्म हुआ वैसा जाके बैठे। तब वहां से लोग कहने लगे कि कोई मोहम्मदी आ गया, क्या कोई मोहम्मदी आ गया? लोग बोले कि नहीं, इसको खत्म कर देंगे, लोग बोले इसको कत्ल कर देंगे, ये मोहम्मदी है, ये हमारे दीन को बर्बाद करता, हमारे दीन को कत्ल कर देता, ये मोहम्मदी है। तो ईसाई बादशाह ने कहा कि नहीं, उनका ईसाई को रहता ना, वो कहता है कि नहीं, अभी ठहरो, इसको ऐसे सवाल डालना जिसमें नाकामयाब हो जाता, फिर नाकामयाबी को बोलते ही उसको पीट। ऐसे सवाल डाले, तो ऐसे सवाल डाले, क्या बोले, एक के अलावा दो कोई है क्या, दो के अलावा तीन कोई है क्या, तीन के अलावा चार कोई है क्या? ऐसे सवाल डाले। पूरे होने के बाद बोले कि देखो हो गया,
और कुछ है क्या? बोले कि ईसाई भाषा की, बोले सारे सवाल के जवाब दे दिए। और ये 62 का 62 दीन का मजमा है, दीन का मजा। अब इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी है तो अगले पूनम में मैं बताऊंगा। कम से कम ये 62 सवाल बनाने के लिए 1 घंटा मुझे चाहिए, 1 घंटा मुझे चाहिए। अपने उम्रों के हम सब अल्लाह के वली बन जाए, अल्लाह के महबूब बन जाए, अल्लाह के दोस्त बन जाए, अल्लाह के दोस्त बन जाए। सुने, 5 का मतलब क्या है? 5 नमाजें कह दिया। 6 का मतलब क्या है? 6 दिन का दुनिया, 6 दिन में दुनिया बनाया। 7 का मतलब क्या है? 7 आसमान बना दिया। यानी ये पूरे एक एक चीज को मैं गिन के बताऊंगा। कहना मुख्तसर ये कहता हूं कि औलिया अल्लाह दुनिया के अंदर पिछले जमाने में आए, दीन को सिखा के गए हैं। दीन के बड़े बड़े लोगों से ये करे, दीन को बड़े बड़े लोगों से ये करे। याद रखो मेरे भाई दोस्तों, देखो हम कैसे हैं। हमारी नमाज कोई काम की नहीं। बुखार आ गई, अल्लाह मुझे बुखार आ गई बाबू, हम बुखार को दूर नहीं कर देते, बुखार को दूर नहीं कर सकते हैं। प्यास लगी, ए अल्लाह हमको प्यास लगी, दूर करें, नहीं कर दे। हमारी नमाज के अंदर वो जान नहीं है, हमारी नमाज के अंदर वो जान नहीं है। वो औलिया अल्लाह किसी के मोहताज नहीं बनते थे, किसी के जेर नहीं बनते थे, किसी के जेर ताबे नहीं होते थे। वो अल्लाह के हबीब के गुलाम बनते थे। सुने, अल्लाह के। आज के जमाने में क्या है? हर कोई मुर्शिद बनता है, हर कोई पीर बनता है, हर कोई पीर बनता है। पीर वैसा कभी नहीं हो सकता, गुरु वैसा कभी नहीं हो सकता। धोखा देने वाला गुरु नहीं बन सकता, धोखा खाने वाला गुरु नहीं बन सकता, और लोगों से खाने वाला गुरु नहीं बन सकता। याद रखो, सबसे बड़े पीर मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और इसके बाद के मेरे पीर पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर है। मेरे पीर गौसुल आजम दस्तगीर है। आज की दुनिया में अगर कोई पीर कहता है, अगर उसका पीर कहना हम मानते नहीं, हम मानते नहीं है। दोस्तों याद रखो, हमारा तुम्हारा यहाँ बैठना, यहाँ आना, मकसद एक ही है, हम दीन के दाई बन जाए, सच्चे रहबर बन जाए, सच्चे बंदगी करने वाले बन जाए, दीन माबूद की परस्तिश करने वाले बन जाए। हम बेदीन है तो दीन वाले बन जाए, हम बेदीन है दीन वाले बन जाने। हम दूसरे खुदा की परस्तिश करते हैं तो खुदा की परस्तिश करने वाला बन जाए, खुदा की परस्तिश करने वाले बन जाए। आज क्यों हमारी जिंदगी कैसा है? देखो, अल्लाह ताला ने 2 चीज पैदा किया, अल्लाह ताला ने 2 चीज पैदा किया, जन्नत भी पैदा किया, जहन्नुम भी पैदा किया, जन्नत भी पैदा किया, जहन्नुम भी पैदा किया। ये 2 महज हजरत इंसान के लिए पैदा किया, महज हजरत इंसान के अलावा किसी के लिए। जानवर का बदला जानवर से दिया जाता है, जन्नत में नहीं मिलता। सारे चिड़िया परिंदा सबका अलग अल्लाह ताला फैसला कर दिया। जन्नत में हजरत इंसान, इंसान के मतलब कौन है? हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, इसके लिए जन्नत है। स्वर्गम नरगम, स्वर्गम नरगम हमारे लिए पैदा किया, क्योंकि और के लिए पैदा किया। और स्वर्गम नरगम, जन्नत जहन्नुम दुनिया के किनारे में है, कोई अलग जगह नहीं है, अलग जगह नहीं है। मगर ये किसके लिए? आज हमारे नबी आपको जन्नत के लिए जाने के मेहनत करे, आज वो रास्ता हम कैसा छोड़ेंगे मेरे भाई? देखो आज हम लोग के, देखो आज हम कैसे कैसे काम करते हैं। मुसलमान क्या करते हैं? कोई मंदिर करने जाता है, कोई दरगाह करने जाता है, कोई किसी को पूजा करता है, कोई मूर्ति का पूजा करता है, कोई पीर का पूजा करता है। क्या पीर हमको देने वाला है? पीर हमारी बख्शिश करने वाला है? पीर हमारी सिफारिश करने वाला है? किसी की सिफारिश अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम, अंबिया अलैहिस्सलाम को उनकी सिफारिश नहीं है। तो अल्लाह अंबिया डरते थे, हमारी सिफारिश अल्लाह ताला कैसे करेंगे? मैं फलानी गलती करा, मैं फलानी गलती करा, मैं ए उम्मतियों तुम्हारी सिफारिश में अल्लाह के सामने जाने मेरी सूरत नहीं। अगर तुम्हारे करने के लिए जाएंगे
تو मेरी गलती अगर पड़े तो अल्लाह का अजाब मुझ पे नाजिर हो जाता है, अल्लाह का अजाब मुझ पे नाजिर हो जाता है। हर अंबिया अलैहिस्सलाम आए, अपनी अपनी गलती को बाहर रखिए। आखिरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हशर के मैदान में उतरते हैं, सवाल जवाब हो जाती है। उम्मत जितने इस सवाल में कामयाबी हुए, जन्नत में बची हुई सुन्नत खड़ी हुई है। मेरे नबी काली कमली वाले ने आते किए देखे, उसी के नखरे गाते किए देखे, आगे मेरे नबी ने कुछ कराने के लिए सजदे में गिर गए। सारे अंबिया खुश हो गए, नबी आखिर अव्वल भी वो आखिर भी वो है। सारे नबी के अंदर हंसी सूरज लगाए, अल्लाह के सामने सुनता रेस हो गए, रोके गिर गए। एक नबी सर उठा क्या चाहता है? मैं कुछ नहीं चाहता हूँ मेरे परवरदिगार आलम, मेरी उम्मती सारी अंबिया अलैहिस्सलाम भी मेरी उम्मती है, सारे के सारे तेरे फजल करम से जन्नत में पहुंचे, सारी के सारे तेरे फजल करम से जन्नत में पहुंचाए। मेरे नबी ऐसे फिक्रमंद थे, अपने आप को ये कर लिए, पनाह कर दी मेरी नबी, दंदाने मुबारक को शहीद कर दिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मेरे नबी चाहते तो जन्नत का महल बना के रह सकते थे। मेरे नबी अगर सोने बैठे तो पाँव बाहर नजर आते थे, पाँव को सराने से तो सर नजर आता था। छोटा सा कमरा था, ओढ़ते वक्त ओढ़ते ना, वो सर को ओढ़ते तो पैर नजर आते थे, पैर को ओढ़ते था। मेरे नबी फटा बोरिया लेके सोया करते थे। आज हमारी जिंदगी कैसी है? हमारी आयश को आराम में जिंदगी गुजारते हैं। आज मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बान कर दिया, हमारे लिए वक्त कर दिया। हाय आखिरकार आखिरी दम तक उम्मती उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मती क्या। आज उम्मत शिर्क में मुब्तला, बिदअत में मुब्तला, गुमराही में मुब्तला, आज धोखे में मुब्तला, झूठ में मुब्तला। अरे दुनिया के चाहते लिए जश्नों में जाना हमारे लिए पसंद है, वचन है। याद रखो, कितने भी पहाड़ियां होंगे, कितना भी पैसा होने दो, सब पैसा रहने दो, तुम्हारी हकीकत कितनी है, हमारी हकीकत कितनी है? 2 लम्हे की भी हमारी इज्जत नहीं है। कब तक? जिसम में जान रह सकी इज्जत। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म आ गया, अगर जान निकाल दिए, निकालने के बाद जान निकाल दिए तो उसके बाद शाम तक तुम्हारी लाश जमीन के ऊपर नजर नहीं आई। ये नहीं बोलेगा मेरे बाप को सुंदक में रख लूंगा, जिंदगी भर मैं देखूंगा, मेरे बाप का पुतला बनाऊंगा, मैं जिंदगी भर इनको अच्छे कपड़े पहनाऊंगा, मेरे बाप को बनाऊंगा, रख लूंगा। कोई बेटा बोलता नहीं, कुछ नहीं बोलता, खरीद दे। जब तेरी जान जाती है तो तेरा नाम भी फना बिल्ला हो जाता है। क्या बोलते हैं? मैयत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाश बोलते हैं, लाश बोलते हैं। ऐसी धोखे की दुनिया में हम कैसे रह सकते? भाई याद रखो, मैं कहता हूँ, मेरे कहने से तुम लोगों को कुछ तकलीफ तो माफ करना। हिंदू हो मुसलमान हो, ये एक परिस्थिति करना, हमारा ईश्वर, हमारा परमेश्वर वो एक ही है जो सबको पैदा किया, वो एक ही है जिसको पैदा किया। చూడండి మనం ఎంత బాధపడుతున్నాం, ఇవాళ మేము భగవంతుడి దారి పట్టే మా పిల్లలు మంచిగా నడుస్తారు. అగర్ మన భగవంతుడి దారి పట్టకుంటే మా పిల్లలు చెడ్డగా నడుస్తుందో. ప్రతి ఇంట్లో చూడండి గొడవలు ఉన్నాయా లేదా? ప్రతి ఇళ్లలో సీఎం ఇంట్లోనే గడబడ్, మినిస్టర్ ఇంట్లో గడబడ్, ఆఫీసర్ ఇంట్లోనే గడబడ్, ప్రతి ఒక్క గడబడ్, పిల్లలు గడబడే అవుతుంది లేదా? రాజకీయంలో పిల్లలు గడబడవుతుందా లేదా? ఎక్కడ సుఖం ఉంది మనకు? ఈ సుఖంలోని జీవితం మనకి ఎందుకు? మన జీవితం దేంట్లో ఉందో అది మనం పట్టుకోవాలా. మనకు భక్తి భావనలో మనకు జీవితం ఉంది, భక్తి భావన అందుకోవాలా. ఆ భక్తి భావన మనకు కావాలా, నాకు కావాలా. भाई दोस्तों, मैं जो बोला हूँ, किसी को अगर बुरा लगे तो माफ करना। मैं कहता हूँ कि आज के तारीख से हम तो दीन के फैलाने में लगे, दीन के दाई बन के लगे। आज ये दरबार, ये खानकाए लतीफा एक नमूना बन जाना, एक नमूना बन जाना, यहाँ
हम शिफा देने वाले मालिक नहीं हैं, हम किसी को शिफा देने वाले मालिक नहीं हैं, हम किसी का काम बनाने वाले मालिक नहीं हैं, हम किसी की बीमारी को दूर करने वाले मालिक नहीं हैं, हम किसी का बेड़ा पार वाले मालिक नहीं हैं, मगर सिर्फ इतना है कि मेरे अल्लाह से दुआ मांगने वाले हैं, मैं भी हूँ आप भी मांगे, मैं भी हूँ आप ही हैं दुआ। इतना फर्क है, किसी की इबादत में ज्यादा की है, अल्लाह के नाम को रटते हुए अल्लाह के नाम में इतनी ताकत है, जो अल्लाह का नाम लिया खुदा की कसम उन्होंने पानी में चल के बता दिया, पानी में चल के बता दिया, अल्लाह का नाम लिया, आग के अंदर फिर के बता दिया अल्लाह का नाम दे। अल्लाह के नाम के अंदर इतनी ताकत है, मगर अकीदत के साथ, एतकाद के साथ, यकीन के साथ, ये माल हमारा नहीं, दौलत हमारी नहीं, हमारा कोई चीज हमारा नहीं, हमारा अल्लाह हमारे। मगर अल्लाह ताला ने वालिदैन को साथ दिया, वालिदैन की खिदमत लाजिम है, वालिदैन की खिदमत लाजिम है, वालिदैन की दुआ जिसने दिया कामयाबी हो। मेरे पीराने पीर बन गए, गौसुल आजम दस्तगीर बन गए, महबूब रब्बानी, महबूब सुबहानी बन गए, इसलिए बन गए मेरे महबूब सुबहानी उनकी वालदा की दुआ से बन गए। उनके वालदा कहते हैं कि मेरी माँ की दुआ से मैंने सुबहानी बन गया, मेरी वालदा की दुआ से मैं गौस बन गया, मैं कुतुब बन गया, मैं अब्दल बन गया। देखो भाई, माँ की खिदमत में जिसने माँ की खिदमत किया वो वली बन गया, बन गया नहीं बन गया। अब बताओ भाई, अगर माँ जितनी भी तकलीफ दे दे, माँ जितनी भी परेशान कर दे, वो हमारे लिए वाजिब है, हमारे लिए वाजिब है। समझो, माँ की तरफ से माँ वो रहमत बन के आती है, रहमत बन के नहीं रहती है। तो हम सब माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो। अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह भी, अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी माँ की खिदमत में थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखने की बड़ी ख्वाहिश थी, नहीं थी, बड़ी ख्वाहिश थी, तमन्ना रहती थी। हुजूर को पता चला, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ने जाके कह गया, ये क्या करे, अवैस तड़प रहा आपको देखने के लिए, नहीं देखने से आपका उसकी अम्मा की खिदमत करना बेहतर है, मेरे देखने से कहता। मगर अल्लाह आखिर में वो क्या कहे, जन्नत का शहजादा निकला, जन्नत का मालिक निकला, माँ की खिदमत की वजह से है। याद रखो, देखो, अगर हम माँ से कोई गलती करे हैं तो अपनी माँ के पैर पर हाथ जोड़ को माफी मांगो। हमारी मौत कब आती है, हमारी मौत कब आती है नहीं मालूम। माँ के कदमों पे सर रखो, माँ की दुआ जब तक ना मिली सर न उठाओ, माँ की दर्जा जब तक ना रही पेट में से मुंडी मत हटाओ, माँ की दुआ अपने माँ के दोनों हाथों को सर पे रखो, दुआओं ले तुम कामयाबी होती। कहीं को मेरे भाई, ये मुर्शिद करने जाना, वो मुर्शिद करने जाना, ये मुर्शिद है, क्या कर सकता भाई, उसका घर का बेड़ा पार नहीं कर सकता, उसका घर का पंचायत पार नहीं कर सकता, उसकी मुसीबत उन पार नहीं कर सकता, मेरी तुम्हारी मुसीबत है उन क्या पार कर सकता जी? बोलो, पार करने वाली कौन है? मेरी माँ मेरे घर में है, मेरी माँ मेरे घर में है, हमारी माँ हमारे घर में है नहीं बस हमारी गाँ। अगर मेरी माँ, हिंदू हजरात के पास एक देवी की पूजा करने वाले थे, बेटे बहू आई, शादी करी, शादी करने के बाद मंदिर करने गए तो बहू, अक्लमंद बहू कहती है कि क्या माँ, ये माता है, ठीक है। माता को जाके सवाल करती है, अरे दीवानी, माता सवाल करने को मुंह कहाँ है मेरे? माता को जब मुंह नहीं है तो मैं कैसा मालूम माँ, ये माता ये नहीं हो सकती, तू मेरी माता। क्या बोल सकती, ये माता ये नहीं है, तू मेरी माता है, मेरी अम्मा, सिर्फ तू मेरी माता है। मैं उसके सामने सर झुका, मेरी माँ, मैं सर झुकाता हूँ तो मेरे सर पे हाथ नहीं रखती है, तो ये मेरी माता कैसे हो सकती है? मेरा सर तेरे खदमे में रखती है तो तेरा हाथ मेरे हाथ पे रखता है, तू मेरी माँ है। अगर मैं बाकी हूँ तो माता, अगर मेरे लिए दुआ के लिए हाथ नहीं उठाती है तो वो मेरी माता कैसे हो सकती है? अब मैं तेरे सजदे पे,
तेरे सामने सर झुका के तेरे पैर पड़ती हूँ, तो तू हाथ उठा के दुआ करती है। अब तू बता कि ये मेरी माता है, तू मेरी माता है, ये मेरी माता है, तू मेरी माता है। माँ की ममता ऐसा तड़पती है, याद रखो, बाप कठिन रहता है, बाप कठिन रहता है, माँ हरगिज कठिन नहीं रहती। माँ पिघल के मुंह बन जाती है औलाद के लिए, माँ औलाद के लिए पिघल के बन जाती है। कने एक बुढ़िया रहती थी, बुढ़िया और बुढ़िया के खिदमत एक बेटा रहता था, एक बेटा रहता था। वो आशिक में पड़ा, बीवी के आशिक में चलेगा, आप जाके बीवी को लेकर दिया, बीवी के कहना मानते हुए लेगा, सारा दर्द सामान बेच दिया, करना था, माँ के जेवर बेच दिया, सब करना था। बुढ़िया माँ को मार के निकाल दिया, बुढ़िया माँ को माँ के निकाल दिया। निकाल के माँ ने बैठी बीवी को ऐसी नाचती बोलती बीवी को लेके अपने मजे करने लगा, मजे करते लगा। तो माँ जाके किसी बैलों के पास, गायों के पास, भैंसों के पास गोबर कूड़ा उठा के अपना गुजारा करती थी। कई साल गुजरने के बाद अल्लाह ने माँ की बदुआ से उसको एक बीमारी आ गई। माँ की ये किस्सा बहुत लंबा है, मैं छोटे छोटे अल्फाज में कम करके बताता हूँ। बीमारी आ गई, जैसे बीमारी आती है तो इतना बीमार पड़ गया कि सालों का जिस्म बेजान हो गया, बेजान होगा, और इतना बेजान होगा, बात करने में उसके अंदर ताकत ना कुव्वत थी, बात करने भी ताकत कुव्वत थी, जान नहीं जा रही। बीवी देखो जो मत गए है, जान नहीं जाती है, कुछ भी नहीं जाती है। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे तो इसको कोई है रिश्तेदार पूछे, है कोई? बीवी कहती है कोई नहीं। इसकी माँ जिंदा है? नहीं है। किसी ने कहा कि इसकी माँ जिंदा है। कहाँ है? फलाने जगह गोबर कचरा उठाते रहती है, फलाने जगह भेजे गए। जाके पूछे मेरी माँ तेरी बेटा है कोई? मेरा कोई बेटा नहीं, दिल जला हुआ है। क्या बोलती? मगर दिल अंदर से जला नहीं, मुंह से बोली मेरा बेटा नहीं। बुला के लाश को बताए थे ये कौन है? नहीं मालूम है, दिल जले। तो जब लकड़ियां मंगाए, आग जला दिए, जलाने के बाद लोगों को कहे कि इस लाश को निकाल को आग में डाल, जीते जी आग में डाल। जब उठाने गए, या रसूलुल्लाह ये मेरा बेटा है, माफ कर दो। ऐसी माँ के पीछे हम नहीं रहेंगे तो और कैसी बातें रहेंगे? ऐसी माँ के पीछे हम नहीं रहेंगे तो और कैसे रहेंगे तुम लोग? तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि बात बहुत बड़ी हो जाती है। मैं आपको गैर जरूरी तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। मेरा यहाँ बैठना, यहाँ रहना मकसद, मेरा दुनिया कमाना मकसद नहीं है। मेरी जान गई परवाह नहीं, मेरे अल्लाह एक, मेरे मोहम्मद एक, मेरा पीर एक, मैं एक हूँ। मैं अल्लाह के लिए कुर्बान हूँ, मैं अल्लाह के लिए कुर्बान है। कौन मेरे साथ देता? ईमान के लिए, दीन के लिए साथ देता। आओ इस खानका को बढ़ाओ, दीन का दार हम निकलेंगे। आज दुनिया पूरी गुमराही में, दुनिया पूरी गुमराही में है। तावीज पलीतों के पीछे न को जाओ, मुर्शिदों के पीछे मत जाओ। वह जाना है तो नबी आखिरी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाओ। मदीने क्यों जाओ, मक्के क्यों जाओ, मगर अल्लाह से मांगने वाले बन जाओ, गैर से मांगने वाले मत बन जाओ। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला मेरे को और तुम्हारे को वहदानियत की जिंदगी गुजारे, मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश शिफाअत नसीब फरमाए। ऐ अल्लाह जो भी कहा, ऐ अल्लाह जो भी कहा या जो कहा है कबूल फरमा दे मौला। ऐ अल्लाह जो भी कहा कबूल फरमा दे मौला। ऐ अल्लाह लीजिए बैठे को मेरे कहने को ना बोलना आता, ना समझ में आता, कुछ नहीं आता, तू जैसे मैं बोलने लगाया मैं बोल दिया हूँ। अल्लाह सबके दिलों में इस बात को डाल दे। अल्लाह इस मेहनत को आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा दे मेरे अल्लाह। अल्लाह हमें रास्ते पे दिखा दे मौला। अल्लाह सबको दीन के रास्ते पे चला दे मौला, वहदानी के रास्ते पे चला दे मौला। जितने लोग यहाँ उम्मीद ले आए उनकी उम्मीद को खाली मत भेज दे, उनके उम्मीद को खाली ना को भेज दे, उनकी उम्मीद को पूरा कर दे मेरे आका, मेरे मौला, तू पूरा कर दे मौला। ऐ अल्लाह
बीमार है शिफा नसीब फरमा, सेहत अता फरमा, आफियत अता फरमा, मुब्तला असरात में है उनके असरात को दूर फरमा। ऐ अल्लाह सख्त बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, किसी को गुर्दों की बीमारी है, किसी की और बीमारी है, तू शिफा देना चाहे तो दे सकता। ऐ अल्लाह शिफा तेरी नेमत है, बीमारी भी तेरी नेमत है, हर इंसान शिफा की नेमत चाहता है, दे अता फरमा दे मेरे मौला। ऐ अल्लाह जो कहने से रह गए भी वो भी अता फरमा दे मौला। ऐ अल्लाह हम सबको तेरा ऐ अल्लाह तेरा मुती फरमा बरदार बना दे मौला, तेरे हबीब को चाहने वाले बना दे मौला। हमारी दुआ को अपने फजल करम से कबूल फरमा दे।